Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 9 September 2021 and I am teaching you chapter number 13, the Northern Plains. So student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, we have discussed that these northern plains are very fertile and they are also known as the food bowl of India. Okay, and after that we discuss that these northern plains are formed by three rivers, that is the Satluj, Ganga and Brahmaputra. Okay, so western part, it is divided into three parts, that is the western, central and eastern part. So western part, the state covers in the western part is the Punjab and Haryana, and central part it is Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal. And when we are talking about the eastern part, then it is some part of the state Assam. Okay, now when we start discussing Satluj basin, so what is the Satluj river? Is the tributary of the river Indus. When we are talking about Satluj, Satluj is a tributary of the Indus river. Okay. So what is Satluj river? Satluj river is the tributary of the Indus rivers, and what are the other tributaries that are Bias, Chenab, Ravi, Jhelum. Okay, so these are the other tributaries. Is it clear? And the river Indus, in the last river Indus enter India in Jammu Kashmir, and then it goes into the Pakistan. Okay, now Satluj river, after flowing in Punjab and Haryana, ठीक है, joins Indus river which flow through Jammu and Kashmir. ठीक है, हरियाणा पंजाब में फ्लो करने के बाद जो आपकी सतलुज रिवर है वो किसको ज्वाइन कर ले रही है? इंडस रिवर को, which flow through Jammu and Kashmir, and from there it goes to the Pakistan. ठीक है, now what is the another important of this Satluj river? At the border of Punjab and Haryana you will see a dam that is known as Bhakra Nangal Dam, the famous, you can underline it in your book, the famous Bhakra Nangal Dam has been built on the Satluj river. Okay, the famous Bhakra Nangal Dam has been built on the Satluj river, and this is in Punjab and border of Punjab and Haryana. Okay, now see what is the importance of this dam. With this dam, the electricity is produced, and the water of the dam is also used for the irrigation. Irrigation means at the time of cultivation we need lot of water. So सिंचाई के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए डैम के वाटर को क्या किया गया? यूज किया जाता है.
ठीक है. अनदर इम्पोर्टेंट ऑफ दिस भाखड़ा नंगल डैम इज दैट once upon a time once upon a time the living condition in Rajasthan is very difficult, because as you know that Rajasthan is a desert area. There is a very scarcity of water. ठीक है, राजस्थान कैसा एरिया बेटा, ये डेजर्ट एरिया टोटली, तो यहाँ पानी की बहुत कमी है. ठीक, इवन ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए भी वाटर नहीं था. ठीक है, सो दैट इज द रीजन द पीपल ऑफ Rajasthan, they are known as nomads, and they move from one place to another in search of work and food. Okay, so but after when the Bhakra Nangal dam is built, has been built on the river Satluj river, then maximum problem of the Rajasthan has been solved due to the water of Bhakra Nangal dam. Okay, as we know that the Indira Gandhi canal, which start from the Satluj river, provide water to the dry area of a Rajasthan. So how the problem of the Rajasthan is solved by this Bhakra Nangal dam, because the water of this dam is supplied to the Rajasthan. Okay, and due to this a lot of change come in the life of the people who are living in the desert area, that is Rajasthan. So what was the name of the canal? The name of the canal is Indira Gandhi canal, from which the water reach to Rajasthan. Okay, so name of the canal, many time it asks in the exam, what was the name of the canal through which, canal मतलब नहर होती है. आप अगर विलेजेस एरिया में जाओगे तो बेटा आपको बहुत सी, आपको हर विलेजेस में नहरें मिलेंगी, और इन नहरों में वाटर इसलिए होता है जो जिससे कि फार्मर्स इस वाटर को कल्टीवेशन में क्या कर सकें, यूज़ कर सकें. बिकॉज इन द ओल्ड टाइम फार्मर आर टोटली डिपेंड अपॉन रेन वाटर. ठीक है, ओल्ड टाइम में फार्मर टोटली रेन वाटर पे ही डिपेंड हुआ करते थे. ठीक है, अगर रेन अच्छी नहीं होगी तो फसलें क्या होती थी, सूख जाती थी. बट नाउ ए डेज ड्यू टू लॉट ऑफ इन्वेंशंस और साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से अब हमने अपने लाइफ को और कंफर्टेबल बना दिया है. जब रेनी सीजन में इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर होता है तो उस एक्स्ट्रा वाटर को हमने रिवर्स के ऊपर डैम बना के स्टोर कर लिया. ठीक है, और इस एक्स्ट्रा वाटर को अब हम लोग कल्टीवेशन में भी यूज कर रहे हैं. एंड दिस एक्स्ट्रा वाटर इज आल्सो यूज्ड इन द पर्पस फॉर producing the electricity. And as we know that electricity is a very important, because maximum things in our house run with the electricity. Okay, so you can write, student, Indira Gandhi canal, Indira Gandhi canal which, and from where this canal start. कैनल मतलब होती है नहरें होती हैं. जो बच्चे गांव में जिनके विलेजेस हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ होंगे. गांव में नहरें होती हैं जिसके वाटर को फार्मर यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ ए कल्टीवेशन, खेती के समय. ठीक है, which starts from the Satluj provides water to the dry areas of Rajasthan. Okay, due to this Bhakra Nangal dam, and it has been built on the river Satluj, so life of the people of Rajasthan has changed. ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज आई है राजस्थान के पीपल्स के लाइफ में, बिकॉज नाउ दे आर गेटिंग इनफ वाटर फ्रॉम द डैम थ्रू द कैनल, एंड नेम ऑफ द कैनल इज Indira Gandhi canal. It starts from the Satluj river to
the Rajasthan. Okay, now the next important things about this Satluj basin is that what are the crops which grow in this area. So crops grown in this region are, second important point is crops grown in this region, are, what are the crops in this region are wheat, सबसे ज्यादा wheat होती है बेटा, wheat, rice, cotton and sugarcane. sugarcane गन्ने को बोलते हैं. Okay, so what are the crops which are grown in this region? That are the wheat, rice, cotton and sugarcane. These are the crops which grow in this region, that is the Satluj basin. And it covers which state? That is Punjab and Haryana. It covers which state? That is Punjab and Haryana. Now what are the famous cities in this region? Okay, after that, third point is what are the famous cities okay, famous or important cities you can buy. Important cities in this region. Region means in this area. Okay, so famous cities are, you can underline this in your book. That is the reason I am writing on the board. Chandigarh, Patiala, Ludhiana, Ambala and Amritsar. So these are the famous cities in this region, that is Chandigarh, पटियाला, लुधियाना, अंबाला एंड अमृतसर. ठीक है, चंडीगढ़ को तो आप लोग पहले भी देख चुके हो. यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया था? पॉलिटिकल रीजन था, क्योंकि जब पंजाब से हरियाणा अलग हो गया तो हरियाणा चाहता था कि चंडीगढ़ का पार्ट जो है हरियाणा में रहे, पंजाब चाहता था उसमें रहे. तो इसलिए दोनों स्टेट्स को खुश करने के लिए क्या किया, इसको यूनियन टेरिटरी बना के इन दोनों का कैपिटल बना दिया. इज इट क्लियर? ये मैंने यूनियन टेरिटरीज के समय आपको बताया था कि पॉलिटिकल रीजन से भी किसी एरिया को क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरीज बना में डाल दिया. ठीक है, सो ये पूरा हमने आज डिस्कस कर लिया बेटा. सतलुज रिवर बेसिन हमने डिस्कस कर ली. नाउ वी लेट स्टार्ट विद द गंगा रिवर बेसिन. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द गंगा रिवर बेसिन, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लें कि गंगा रिवर बेसिन किस स्टेट्स को कवर कर रही है. सो दैट इज द आंसर इज उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. दीज आर द states which is covered by the Ganga river basin. Okay, when we are talking about the Ganga, so सबसे पहले हम लोग, गंगा is the holy river and Hindus worship this river. ठीक है, ये holy river है और in Hindu religions people worship river Ganga. ठीक है, is it clear? Now the question arises from where the Ganga starts. So the Ganga starts from गंगोत्री. ठीक है, गंगा कहाँ से चली है? गंगोत्री ग्लेशियर से. ठीक है,
ओके, तो सबसे पहले आप ये पता लगा लो बेटा, गंगा रिवर बेसिन है, गंगोत्री है, ठीक है। तो गंगा ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होते हैं, ह्यूज पीसेस ऑफ आइस, और इन्हीं के मेल्ट होने से रिवर्स की ऑरिजिन्स होती है। और ये कैसी रिवर है, ये भी माउंटेन रिवर है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिवर इज गंगा, गंगा इज द माउंटेन रिवर है। ये कैसी रिवर है, माउंटेन रिवर है। तो सबसे पहले ये जान लो, माउंटेन रिवर है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, पेरिनियल। पेरिनियल का मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। पेरिनियल वो रिवर्स होती हैं विच हैविंग द वाटर थ्रू आउट द ईयर। ऐसी रिवर्स जिसमें पूरे साल वाटर होता है, उस रिवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं। सी सो गंगा स्टार्टिंग फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर से चली है। और ये किस स्टेट में है, ये उत्तराखंड में आपके, ठीक है। यूके, यूके मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यूके इज द उत्तराखंड से आपकी गंगा रिवर चल रही है, ठीक है। इज इट क्लियर। और ये हरिद्वार से प्लेन्स में इंटर कर जाती है, ठीक है। तो गंगा कहाँ से चल रही है, गंगोत्री से चल रही है, अरे गंगोत्री ग्लेशियर से इसकी ऑरिजिन हुई है। और ये किस स्टेट से है, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से गंगा रिवर आपकी चल रही है। अब ये भी माउंटेन रिवर्स है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिनियल रिवर्स है। और पेरिनियल रिवर्स क्या होती है बेटा, पेरिनियल रिवर्स आर दोज रिवर्स विच हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। ऐसी रिवर्स जिसमें पूरे साल क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। अब तुम लोग को अब ये जो उत्तराखंड से चल रही है, तो ये उत्तराखंड क्या है, ये हिमालयस रेंज है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले वाला चैप्टर मैंने आप लोग को जब द ग्रेटर हिमालयस पढ़ाया था, तो वहाँ मैंने आपको हिमालयन रेंज समझाई थी। जम्मू कश्मीर से हिमाचल में आ गए, हिमाचल से उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद फिर नेपाल, सम पार्ट ऑफ द हिमालयस इन नेपाल, देन अगेन इन इंडिया सिक्किम, एंड देन अगेन इन भूटान, एंड देन अगेन सम पार्ट ऑफ द हिमालयस रेंज इज इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक पूरा, ये इससे पहले चैप्टर में हम लोग ने आपसे डिस्कस किया था। तो अब ये जो उत्तराखंड स्टेट है, उत्तराखंड के जो माउंटेन्स हैं, ये यहाँ से ऑरिजिन हुई है। और व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्लेशियर, नेम ऑफ द ग्लेशियर इज गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा स्टार्ट हुई है। कहाँ से स्टार्ट हुई है, उत्तराखंड से, ओके। हिमालयज एंड फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड से फिर उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार एंड वेस्ट बंगाल। और जैसे जैसे ये नीचे आती जाती है, ठीक है, माउंटेन से, तो इसकी बहुत सी ट्रिब्यूटरीज, मतलब इसकी बहुत सी जो सहायक नदियां हैं, इसको ज्वाइन करती चली जाती हैं, उनका पानी भी इसमें मर्ज होता चला जाता है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड से आ रही है, उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश आएगी, उत्तर प्रदेश से ये बिहार जा रही है, और बिहार से सबसे लास्ट में जो जा रही है, ये किस में जा रही है, वेस्ट बंगाल में जा रही है, ठीक है। अगर गंगा रिवर्स बेसिन के बारे में अगर आप लोग पढ़ो बेटा, तो अगर हम गंगा रिवर मान लो, इसी को हम लोग मान लेते हैं गंगा रिवर है, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे, ठीक है, गंगा रिवर है। सो अब सबसे बड़ी बात कि गंगा रिवर की अब डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। अब जब ये प्लेन्स में आती है, प्लेन्स में कहाँ आएगी, आपके उत्तर प्रदेश है, प्लेन्स में कहाँ से इंटर करती है, हरिद्वार के आगे जितना पोर्शन है, प्लेन्स रिवर ज्वाइन, ठीक है। हरिद्वार गंगा इमर्जेज फ्रॉम माउंटेन टू प्लेन्स, ठीक है। माउंटेन से प्लेन्स में किस पार्ट से गंगा का स्टार्ट होता है, प्लेन से, दैट इज द हरिद्वार, ओके। और जब वो प्लेन्स में रिवर गंगा आती है, तो उसकी बहुत सी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां, जो उसको क्या कर लेती हैं, ज्वाइन कर लेती हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे गंगा, जो मान लीजिए गंगा रिवर है, तो गंगा का एक लेफ्ट रिवर बैंक है, ठीक है। लेफ्ट बैंक से कुछ रिवर्स गंगा को लेफ्ट, फॉर एग्जांपल ये गंगा है, तो ये इसका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो कुछ रिवर्स गंगा को ज्वाइन कर रही हैं लेफ्ट साइड से, और कुछ रिवर्स जो है गंगा को ज्वाइन कर रही हैं राइट साइड से। इज इट क्लियर। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो कौन कौन रिवर्स हैं जो ज्वाइन कर रही है, पहले ये समझ लो, घाघरा, गंडक और कोसी, ठीक है। घाघरा, गंडक, कोसी, ये तीनों रिवर्स जो हैं, ये भी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, गंगा की, और ठीक है। फिर चंबल, बेटवा और सन, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये भी गंगा की हैं। So in the next video I will explain you which tributary join from the left side and which join from the right side. Thank you.